کہ ہم اس کے اندر سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طرح کا ڈیٹا بلاگز کے ریلیونٹ چاہیے، آپ فیو منٹس میں اس کی کلیکشن کر سکتے ہیں، چاہے جتنا بھی ڈیٹا ہو، جس بھی نیچ کے اوپر ہو، جیسا بھی ڈیٹا جس کوالٹی میں، جس ریکوائرمنٹس میں چاہیے، آپ خود کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج اس کا تھرڈ میتھڈ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کا کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے کسی بھی ریکوائرمنٹ کے ساتھ، لیکن آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس وہ کسٹمر کی ویب سائٹ کا بھی نہیں پتا آپ کو، تو پھر بھی آپ اس کو ملینز آف ویب سائٹس دے سکتے ہیں اور فیو منٹس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دس از بلال لیاقت فرام مسٹر ایس ای او، اور آج ایس جی بی اسمارٹ گیسٹ بلاگنگ، اس کی جو اسپیشل ریسرچ ہماری بلاگ ڈیٹا کلیکشن کے اوپر چل رہی ہے کہ ہم اس کے اندر سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طرح کا ڈیٹا بلاگز کے ریلیونٹ چاہیے، آپ فیو منٹس میں اس کی کلیکشن کر سکتے ہیں، چاہے جتنا بھی ڈیٹا ہو، جس بھی نیچ کے اوپر ہو، جیسا بھی ڈیٹا جس کوالٹی میں، جس ریکوائرمنٹس میں چاہیے، آپ خود کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج اس کا تھرڈ میتھڈ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تھرڈ میتھڈ کے اندر ہم یہ چیز پڑھیں گے، ایک کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے بلاگز کا ڈیٹا چاہیے، لیکن آپ کے پاس اس کو دکھانے کے لیے کوئی ایک بھی ویب سائٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کسٹمر کی ویب سائٹ کا پتہ ہے جس کو کہ آپ نے وہ ویب سائٹ دکھانی ہے، تو پھر آپ ڈیٹا کلیکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس میتھڈ کے تھرو، تھرڈ میتھڈ کے تھرو ہمارے آپ اس چیز کے قابل بن سکیں گے کہ اگر آپ کا کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے کسی بھی ریکوائرمنٹ کے ساتھ، لیکن آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس وہ کسٹمر کی ویب سائٹ کا بھی نہیں پتا آپ کو، تو پھر بھی آپ اس کو ملینز آف ویب سائٹس دے سکتے ہیں اور فیو منٹس کے اندر۔ مارکیٹ کی سب سے اچھی ڈیٹا کلیکشن فیو منٹس میں آپ اس کو کر کے دے سکتے ہیں، فری آف کاسٹ۔ تو وہ کیسے کر کے دے سکتے ہیں کہ آج کے بعد آپ جو کی ورڈز لگاتے تھے، وہاں پہ جاتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کے بعد آپ ایس جی بی کی طرف موو کر چکے ہوئے ہیں۔ ایس جی بی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ اسپیشل ریسرچ کے تھرو ڈیٹا کلیکشن کریں۔ تو آج کا لیکچر کہ اگر ایک کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے کوئی ایک ویب سائٹ بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کسٹمر کی ویب سائٹ کا پتہ، مطلب ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو کیسے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے؟ تو اس کے لیے پریکٹیکل کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر اسکرین کے اوپر چلتے ہیں اور جا کے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، تو ابھی ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر اسکرین کے اوپر، اور بلاگ ڈیٹا کلیکشن اسپیشل ریسرچ کے جو 3 میتھڈ تھے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا میتھڈ کہ جس کے اندر آپ ایک بلاگ ویب سائٹ سے ملٹیپل ویب سائٹس بنا سکتے ہیں، کہ آپ کے پاس ایک کسٹمر آیا، اس نے آپ سے کسی بھی ریکوائرمنٹ کے اوپر آ کے ڈیٹا پوچھا، مجھے فلاں اس کی ویب سائٹ چاہیے، آپ اپنی اسپریڈ شیٹ پہ گئے، آپ نے دیکھا صرف ایک ویب سائٹ پڑی ہوئی ہے، اس ایک ویب سائٹ سے آپ ملینز آف ویب سائٹس بنا سکتے ہیں۔ یہ پہلا میتھڈ آپ نے ڈسکس کر لیا۔ دوسرا میتھڈ یہ تھا کہ ہمارا ایک کسٹمر آیا وداؤٹ اینی بلاگ ویب سائٹ، کریٹنگ ملٹیپل، ایکسٹریکٹنگ ملٹیپل، یہاں پہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں آپ ملٹیپل بلاگ ڈومینز ود دا ہیلپ آف کسٹمر ویب سائٹ۔ کہ آپ کے پاس کسٹمر کی ویب سائٹ آپ کو پتا ہے، جس کسٹمر کو آپ کو ڈیٹا بنا کے دینا ہے اس کی ویب سائٹ آپ کو پتا ہے، تو اس کی ہیلپ سے آپ بہت زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن تھرڈ میتھڈ ایک ایسا میتھڈ ہے، ہیو نتھنگ ٹو اسٹارٹ ود، کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ بلاگ کی ویب سائٹ ہے، نہ کسٹمر کی ویب سائٹ ہے، خالی اسپریڈ شیٹ، خالی، کچھ نہیں پڑا ہوا اس کے اندر۔ کسٹمر آ گیا کہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے ڈیٹا مجھے فلان اس کا چاہیے، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کسٹمر کی ویب سائٹ کا بھی آپ کو نہیں پتا، کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، کسٹمر آیا آپ کے پاس، اس نے ڈیٹا پوچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا کریں، ڈیٹا تو نہیں ہے میرے پاس، اسپریڈ شیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، لیکن اب اس کو ڈیٹا پرووائڈ تو کرنا ہے نا، اب اس کو کچھ نہ کچھ شو تو کروانا ہے، تاکہ اس کسٹمر کے ہم ویب سائٹ شو کروا کے کوئی آرڈر لے سکیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں یہ کسٹمر نہیں ہے، آپ کو کسٹمر ریکوائرمنٹس تو بتائے گا نا کہ مجھے ٹریول کی نیش کے اوپر چاہیے، مجھے فلاں نیش کے اوپر ویب سائٹس چاہیے۔ فرض کریں وہ آپ کو کہتا ہے مجھے ٹریول کی نیش کے اوپر چاہیے، آپ کے پاس ٹریول کی ویب سائٹ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کسٹمر کی ویب سائٹ کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن پتہ اتنا تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ٹریول کا ڈیٹا چاہیے، کس نیش کا چاہیے، نیش کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی بھی ویب سائٹ ایک اوپن کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کوئی ایک بلاگ ویب سائٹ اوپن کر لیتے ہیں۔ لائک یہاں پہ میں اسٹرکچر بھی بناتا جاؤں، ساتھ ساتھ آپ کا کانسیپٹ ہی کلیئر کرنا ہے اصل میں اس ویڈیو کے اندر۔ کوئی بھی ایک ویب سائٹ، لائک یہ بلاگ ویب سائٹ ہے،
a general or required niche blog website, कि या तो कोई जनरल की वेबसाइट आप देख लें जिसके अंदर हर तरह का कंटेंट है, या वो वेबसाइट पिक कर लेंगे जो उस निश के ऊपर है। मतलब ट्रैवल की है तो आप ट्रैवल की कोई वेबसाइट देख लें, अगर ट्रैवल की नहीं है तो जनरल की देख लें, कोई जनरल डोमेन देख लें आप अपनी वेबशीट में से, कि जनरल की वेबसाइट तो उसके अलावा तो कुछ होंगी ना आपके पास, कि ट्रैवल की नहीं है कोई और वेबसाइट पड़ी होगी, आप जनरल का वो डोमेन देखें, कोई डोमेन सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डोमेन सेलेक्ट करता हूँ thefrisky.com, कि जिसके अंदर पता है हमें कि ईजिली लिंक मिल जाएगा, गेस्ट पोस्ट के ऊपर ही ये वेबसाइट है। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, thefrisky.com को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैवल की निश है, तो हमें पता है कि ट्रैवल है, यहाँ पे जनरल की वेबसाइट है, ट्रैवल की कैटेगरी के अंदर आप चले जाएं। ट्रैवल में चले गए जी, हम ट्रैवल के आर्टिकल्स आना शुरू हो गए। अब यहाँ पे आके आपने करना क्या है, ट्रैवल निश में जाके एक वेबसाइट ओपन की, ओपन करने के बाद thefrisky.com कोई जनरल डोमेन आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कोई आर्टिकल आपने ओपन कर लेना है। ये आर्टिकल्स किन के हैं, जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे गेस्ट पोस्ट करवाई हुई है, जो ऑलरेडी आपसे पहले यहाँ पे कस्टमर्स आए हुए हैं, कि उनकी वेबसाइट्स हैं, कि ये वो लोग हैं। आपने तो गेस्ट पोस्ट नहीं करवाई ट्रैवल के ऊपर, आपसे पहले इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट हुई है। आपसे पहले इस जनरल की वेबसाइट पे अगर आए तो इस जनरल की वेबसाइट के ऊपर आज से पहले ट्रैवल की गेस्ट पोस्ट हुई है। इसका मतलब जब गेस्ट पोस्ट हुई है तो जिन लोगों ने गेस्ट पोस्ट करवाई है उनके यहाँ पे लिंक्स का डाटा मौजूद होगा, कि हम उनके आर्टिकल्स को खोलें। तो खोलने के बाद हम देखें, यार लाइक मैंने एक आर्टिकल ओपन किया, ओपन करने के बाद देखें तो यहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं। अब हम इन लिंक्स को अगर ओपन करके देखें तो ये आपसे पहले ये नो फॉलो लिंक है, जो नो फॉलो एक्सटेंशन की मदद से पता चला। ये एक्सटेंशन अगर आप लगाएंगे, नो फॉलो लिंक नाम है क्रोम का एक्सटेंशन का, नो फॉलो एक्सटेंशन, नो फॉलो क्रोम एक्सटेंशन लगाएंगे इस तरह से। अगर नो फॉलो लिंक है कोई, आपको हाईलाइट करके बता देगा। ये भी नो फॉलो लिंक है, आपको ओपन करने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने ये लाइक एक वेबसाइट ओपन की है। अब मुझे ये पता है कि ये एक ऐसा कस्टमर है जो ट्रैवल की निश के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवा रहा है मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर। लाइक इसने thefrisky.com के ऊपर अगर कंटेंट पब्लिश किया, इसने और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे किया होगा। आप इसको अपना क्लाइंट फर्ज कर लें। क्या करें, ये जो वेबसाइट है, एक जनरल की वेबसाइट लें, कोई भी निश के ऊपर जनरल कोई डोमेन आपके पास आ गया जो आपके पास गेस्ट पोस्ट के लिए पड़ा हुआ हो, आप उसको समझें, उसको अंदर आप ओपन करें। ओपन करने के बाद जिस निश का डाटा आपको कस्टमर चाह रहा है उस निश पे चले जाएं। लाइक मैं ट्रैवल में चला गया, ट्रैवल में जाने के बाद अब कौन सी यहाँ पे आर्टिकल्स किसके हैं जो ट्रैवल के निश के लोगों ने प्रमोट किए हुए हैं। इसका मतलब क्या, हमने देखा था कि कस्टमर रेलिवेंसी के अंदर जाके कंटेंट लगवाता है। इसका मतलब ट्रैवल के अंदर ट्रैवल का कस्टमर ही मौजूद होगा, कि कस्टमर वहां पे जो अगर कस्टमर की वेबसाइट ट्रैवल की है तो वो ट्रैवल का आर्टिकल लिख के ही पब्लिश करेगा। ठीक है, तो ट्रैवल के आर्टिकल के अंदर कस्टमर आपको ट्रैवल का ही मिलेगा। तो यहां पे क्या है, फिर आपने आर्टिकल ओपन किया, ओपन करने के बाद लिंक्स ओपन करके देख लिए, वेबसाइट मिल गई। अब ये एक वेबसाइट आपको कस्टमर की वेबसाइट मिल गई, इसको समझ लें कि आपका कस्टमर है। एग्जाम्पल फर्ज कर लें मिसाल के तौर पे कि ये आपका कस्टमर है, इसके अंदर से बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक से ट्रैवल के आपने फर्ज कर लिया, एक लिंक लिया यहां से इसके आउटबाउंड डोमेन से कि ये आपका कस्टमर है। फॉर एन एग्जाम्पल फर्ज किया आपने, एग्जाम्पल के लिए फर्ज कर लिया आपने कि ये आपका जो है कस्टमर है। अब अगला कॉन्सेप्ट यहां पे क्या बनता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जनाब यहां पे ये जो वेबसाइट है इसने एक वेबसाइट से लिंक तो नहीं लिया हुआ। होता क्या है, हमारा जब बंदा है ना कोई आम रूटीन गेस्ट पोस्ट के अंदर जो आपने पहले सीखी हुई है उसके अंदर क्या होता है कि जब कोई कस्टमर आता है बंदा पजल हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा होता करना क्या है। बंदा सोच रहा होता कि यार कस्टमर आ गया, डाटा नहीं है मेरे पास, क्या करूं, गूगल पे जाऊं, शीट पे जाऊं, फेसबुक पे जाऊं, कहाँ पे जाऊं मैं कि मुझे कोई डाटा मिल सके, यार क्या करना। टेंशन से वो बेचारा बैठा होता है, सोच रहा होता है अब करना क्या है। लेकिन यहां पर अगर आपको SGB आती है तो आपने सोचना नहीं है, सोचेंगे जरूर लेकिन ये नहीं कि यार अब करना क्या है, समझ नहीं आ रही, नहीं, आपके पास हजारों रास्ते हैं। तो एक SGBN क्या कर रहा होता है, वो सोच नहीं रहा होता,
SGPN सोचता इस टॉपिक के ऊपर है कि अब यहां पे रास्ता कौन सा खुलने वाला है, आगे मजीद किस तरफ जाना है। वो फास्ट काम की तरफ बढ़ता है, नए रास्ते इसमें देखता है, नए रास्ते देख के इसमें बहुत सारे अपने जो है सॉल्यूशंस निकाल लेता है अपने मसले के। तो इसी तरह से आपने सोचा एक ब्लॉग की वेबसाइट ली, ब्लॉग की वेबसाइट से आपने एक आउटबाउंड डोमेन लिया कि आपका एक कस्टमर आपने फर्ज कर लिया। ये कस्टमर कौन सा है? जो गेस्ट पोस्ट करवा रहा है ट्रैवल की निश के ऊपर से। अब इस कस्टमर ने एक वेबसाइट से लिंक नहीं लिया हुआ, इसने और भी बहुत सारी वेबसाइट से लिंक्स लिए हुए हैं। ये चीजें आपको बस एक दो दफा देख लेंगे फिर आपको समझ आ जाएंगे। 3 मेथड अगर समझ गए हैं आप, गेस्ट पोस्टिंग आप जैसी कोई नहीं कर सकता, और इस जैसी गेस्ट पोस्टिंग आप आज से पहले आपने पूरे एशिया में देखी भी नहीं होगी। ठीक है, किसी जगह पे भी, किसी फिजिकल में, किसी ऑनलाइन यूट्यूब कंटेंट सर्च कर लें आप। आज से पहले ये वीडियो अपलोड हो रही है, आज से पहले ये वीडियो आपको यूट्यूब किसी जगह पे मिले तो मुझे आपने बताना जरूर है कि फलां जगह पे है। लें जी, इस कस्टमर ने और भी बहुत सारी वेबसाइट से लिंक्स लिए हुए होंगे। अब जैसे इस ब्लॉग से वेबसाइट लिया, इस पे भी लिया, इस पे भी लिया, इस पे भी लिया। इसकी कोशिश क्या होती है, अगर ये जनरल के ऊपर भी जाए तो वहां पे ट्रैवल की कैटेगरी जरूर होगी, क्योंकि लाइक हम फ्रिस्की में एक ट्रैवल की कैटेगरी थी तो इसने अपना आर्टिकल वहां पे पब्लिश किया कि ये ट्रैवल का बंदा है, ये देख रहा होता है कि मुझे रेलिवेंट वेबसाइट्स मिले, मुझे वो वेबसाइट्स मिले जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, मुझे वो वेबसाइट्स मिले जो प्राइस में रीजनेबल हों। इसका मतलब है ये जौन सी वेबसाइट भी पिक करेगा, ये जौन सी वेबसाइट भी पिक करेगा उसमें बैकलिंक्स लेने के लिए वो क्वालिटी में अच्छी होगी, मतलब डीए अच्छा होगा, ट्रैफिक उसकी अच्छी होगी। आपको डीए ट्रैफिक चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मौज बार आपका बंद हो, चाहे ब्लॉक हो जाए ब्लॉक, अब आपको जरूरत ही नहीं है करने की, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपके कस्टमर ने आपको करके दिया हुआ है, क्योंकि जिस बंदे ने पैसा पे करना वो आपसे अच्छा एनालिसिस करना जानता है, क्योंकि आपने तो सिर्फ डीए देखना होता है ना, गो थ्रू करना शीट में लगाने के लिए, उसने इस वेबसाइट का पे करना होता है। जिस बंदे ने पैसा पे करना वो को हल्की चीज थोड़ी लेगा, वो क्वालिटी में बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगा रहा होता है। इसका मतलब आपको फिल्टर लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, आपके फिल्टर्स का काम ही सर आपको कस्टमर ने करके दिया हुआ है। तो जहां पे उसने लिंकिंग करवाई हुई है इस कस्टमर ने, अब इसके अंदर मैंने ये वेबसाइट फर्ज की, अब इस बंदे ने द फ्रिस्की से भी लिंक लिया और भी बहुत सारी वेबसाइट से लिंक्स लिए होंगे। तो जहां जहां से इसने लिंकिंग करवाई है वहां पे ट्रैवल का कंटेंट प्रमोट हुआ, अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट्स होंगी। लाइक अगर frisky.com की ट्रैफिक देखिए 32 के ट्रैफिक है, इसका मतलब बाकी भी वेबसाइट्स इसके अंदर जो होंगी अच्छी क्वालिटी की होंगी। इसी तरह से एक कस्टमर आपने लिया, इसी तरह से ट्रैवल का आप दूसरा कस्टमर यहां से फाइंड आउट करें, इसी तरह से आप यहां पे आ जाएं, थर्ड कस्टमर एक फाइंड आउट कर लें। यहां पे एक कस्टमर, मैंने एक आर्टिकल ओपन किया, आप दूसरा आर्टिकल ओपन करें, तीसरे आर्टिकल में से लिंक निकालें। ये एक आर्टिकल मैंने ओपन किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह के आप आर्टिकल्स ओपन करें। यहां पे ओपन करने के बाद यहां पे क्या करें, इनके आप बैकलिंक्स निकालते जाएं, फर्दर वेबसाइट्स के बैकलिंक्स निकालते जाएं कि इन वेबसाइट्स ने यहां से लिंकिंग करवाई हुई है, ये ट्रैवल की साइट्स हैं, अच्छी क्वालिटी की साइट्स हैं, प्राइस में रीजनेबल हैं। ये जो वेबसाइट्स हैं सारी की सारी ये ब्लॉग की ऐसी वेबसाइट्स हैं कि आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। SGP आपको पहले दिन बताया था, SGP क्या है? SGP आपके रस्तों को खोलने का नाम है कि एक आप ट्रैक पे चढ़ गए हैं, उसके मल्टीपल विजन्स दिखाने का नाम है, आपको अब्रॉड विजन्स आपको दिखाने का नाम है कि अब आप एक जगह पे नहीं लिमिटेड नहीं रहेंगे। ऐसी प्रोफेशनल रिसर्च आप आज से पहले आपने कई जगह पे नहीं देखी होगी कि SGP के अंदर हम क्या करते हैं, अब्रॉड विजन लेके आते हैं। एक चीज है उसकी जरूरत पड़ गई है, उस जरूरत का फिर आप थोड़ा सा सोचते हैं, सोचेंगे क्या, लाइक आपको यहां पे जरूरत पड़ेगी कि यार ट्रैवल की निश की वेबसाइट चाहिए, है ही कुछ नहीं शीट के अंदर, हम क्या करते हैं फेसबुक पे पोस्ट लगा देते हैं, यार वहां ये कर देते हैं, वो कर, नहीं ऐसा नहीं करना। आप सोचें थोड़ा सा बैठ के, आप सोचें ये कि SGP का जो थर्ड मेथड आता है उसकी स्पेशल रिसर्च में एक चीज आती है कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है ना, अगर आपके पास कस्टमर की वेबसाइट भी नहीं है तो हम कोई जनरल की वेबसाइट ले सकते हैं, कोई जनरल का डोमेन ले सकते हैं। उस जनरल के डोमेन से आप आउटबाउंड लिंक्स निकाल के, मतलब आउटबाउंड डोमेन्स के वहां पे जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने वो आर्टिकल्स लगवाए हुए हैं उनकी वेबसाइट तक अगर हम पहुंच जाएं तो उन्होंने thefrisky.com की तर्ज की बहुत सारी वेबसाइट ट्रैवल्स की से लिंक्स लिए होते हैं। इसका मतलब रास्ता खुल गया आपके सामने। अब क्या करें,
1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 4 कस्टमर, 10 कस्टमर टारगेट करें कितने कर सकते हैं। अगला रास्ता भी मैं आपको और एक बड़ा विजन दे दूं। यहाँ तक आपका तकरीबन मेथड समझ आ गया आपको। अब आप कहते हैं कि नहीं यार 10 ये आउटबाउंड डोमेन सिर्फ 10 मिले हैं मुझे, 10 में से एक वेबसाइट से मुझे तकरीबन 100 वेबसाइट मिली, तो तकरीबन 1000 वेबसाइट्स हुई हैं, 1000 से मैं मुतमिन नहीं हूँ, मुझे कम से कम कोई 1 लाख वेबसाइट चाहिए। अगला मेथड क्या है, आपको ये वेबसाइट्स मिल गई, स्पेशल रिसर्च का पहला मेथड सोचें क्या था, अप्लाई करें यहाँ पे कि अगर एक ब्लॉग की वेबसाइट है, इसमें से आगे फिर आप आउटबाउंड डोमेन्स निकालें। कितनी वेबसाइट्स मिली, 1 से 100 से फिर आप आउटबाउंड डोमेन्स निकालें, 10 भी निकलेंगे, 100 से ऊपर निकलेगा, वैसे 500 400 1000 के करीब भी जाएगा। तो क्या है 100 ही आप लगाएं अगर नॉर्मल रूटीन में, इस वेबसाइट से 100 बैकलिंक्स निकले, इन बैकलिंक से आगे फिर आप इस तरह आउटबाउंड डोमेन्स निकालते जाएं, आगे उन आउटबाउंड डोमेन्स के फिर आप बैकलिंक्स निकालते जाएं, तो बन गया ना डाटा मिलियंस के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये सर्कल अब ऐसा सर्कल शुरू हो चुका हुआ है कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आपको बताया था कि SGB आपकी लिमिट्स को खत्म करने का नाम, यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है किसी तरह की भी, आप जस्ट काम करने वाले बने, यहाँ पे किसी किस्म की कोई लिमिट मौजूद नहीं है। जितना डाटा जौन सी निश आपको रिक्वायर्ड है उसके ऊपर आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये इसका स्केच आपको समझ आ गया होगा। इसको प्रैक्टिकली करने के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसको आप प्रैक्टिकली कैसे करना है, क्योंकि इसका स्केच समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सीधा आपको सैमरश पे ले जाऊं, बहुत सारे लोग हैं कि ये कॉन्सेप्ट वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी वो आदत नहीं होती यूट्यूब की तरह, मैं मतलब उस तरह की यूट्यूब की कि जिस तरह में जस्ट आपको कंटेंट बस जान छुड़वाना नहीं, आपको समझ आ जाए। जिस तरह के हमारा फिजिकल कोर्स होता है, जिस तरह के हमारा ऑनलाइन कोर्स होता है, उस तरह से आपको यहाँ यूट्यूब पे भी समझाया जाए, ताकि जो बंदा यूट्यूब पे भी टाइम दे रहा है उसके भी पल्ले कुछ पड़े, वो भी यहाँ पे प्रोफेशनल बन के अर्निंग कर सके। तो यहाँ पे है आपका कंटेंट, यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल के ऊपर इंशाल्लाह आपको दे दिया गया है। आप यहाँ से आप थर्ड मेथड की रिसर्च शुरू कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन शुरू कर सकते हैं। ब्लॉग डाटा कलेक्शन में आज के बाद अगर आप कहते हैं मुझे कोई मसला है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको जिस निश का जैसा डाटा चाहिए आप अच्छा क्वालिटी का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आज अगर आपको डाटा नहीं मिलता, आप गलत कह रहे हैं। तो आपको अगर आई होप थर्ड मेथड की भी समझ आ चुकी होगी, नहीं आई आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। कंटेंट आपको आई होप के बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपने देखा ही नहीं है। तो इसको शेयर करना चाहिए मल्टीपल टाइम्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ग्रुप्स में, जहाँ तक आप कर सकते हैं। ये स्पेशल मेरा मैसेज है आप लोगों को कि जहाँ तक आप इस कंटेंट को ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं लाजमी करें, ताकि चैनल को वो ग्रोथ मुझे नज़र मिलती नहीं यार, अच्छी ग्रोथ है माशाल्लाह से कि विद इन 1 मंथ चैनल ऑर्गेनिकली मोनेटाइज हुआ है। कंटेंट ऐसा है कि होना भी चाहिए था, लेकिन अभी भी इसको बूस्ट बहुत ज़्यादा, मैं जो विजन देख रहा हूँ वो बहुत बड़ा विजन होना चाहिए। तो जितना भी ग्रुप्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं लाजमी करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।